हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डेसिमल्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: टेंथ्स एज डेसिमल, हंड्रेड्स एज डेसिमल, थाउजेंड्स एज डेसिमल, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज डेसिमल नंबर्स, प्लेस वैल्यूज इन डेसिमल्स, इक्विवेलेंट डेसिमल्स, कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. Now, deci means tenths, the tenth part of a whole. A fraction with denominator 10, 100 or 1000 are called decimal numbers or decimals. जिनके हमारे डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 है, उनको डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स. Now, tenths as decimals. The fraction 1 by 10, 1/10 can be written as 0.1, 0.1. Similarly, 3 by 10 is written as 0.3 and 9 by 10 as 0 dot या decimal 9. The numeral 0 dot या decimal 1, 0 dot या decimal 3 and 0.9 are called decimal numerals or simply decimals. 0.1 is read as 1/10th or 0.1 or decimal 1. If there is no digit before point, 0 will be put before the point. 1/10th means 1 part out of 10 parts. 1 by 10 is equals to 0.1. 2/10th means 2 parts out of 10 parts. 2 by 10 is equals to 0.2 or 0.2. 3/10th means 3 parts out of 10 parts. 3 by 10 is equals to 0.3. Common error. Students often get confused for reading decimals. For example, 15.25 is read as 15.25 and not 15.25. Now, hundredths as decimals. 1 part out of 100 parts is equals to 1 upon 100 is equals to 0.01. 5 parts out of 100 parts is equals to 5 upon 100 is equals to 0.05. 18 parts out of 100 parts is equals to 18 by 100 is equals to 0.18. 100 में कितनी जीरोज है? 2 zeros. तो हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेंगी, राइट? 0.01 is read as 1/100th, 0.01 or decimal 01. We read 5 by 100 as 5/100ths, 18 by 100 as 18/100ths. क्या पढ़ेंगे? hundredths. Now next is thousandths as decimal. 1 part out of 1000 parts is equals to 1 upon 1000. 1000 में कितनी जीरोज है? 3. तो इसके बाद क्या रहेगा? 0.001 और 1/1000th. 9 parts out of 1000 parts is equals to 9 upon 1000 is equals to 0.009. 0.009 or 9/1000th. 27 parts out of 1000 parts is equals to 27 by 1000 is equals to 0.027 or 27,000ths. 384 parts out of 1000 parts is equals to 384 upon 1000 is equals to 0.384 or 384,000ths. 0.001 is read as 1/1000ths, 0.001 or decimal 001. Now, fraction decimal read as. Fraction given है decimal और उसको कैसे हम read करेंगे? Like 6 by 10 is equals to decimal में कैसे लिखेंगे? 0.6 and 0.6. 7 by 100 0.07, 0.07. 29 by 100 ये हमारा 100 है, तो इसको हम कैसे डेसिमल में करेंगे? 0.29, 0.29. 4 by 1000 ये हमारा क्या है? 1000. तो इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.004, 0.004. Now 73 by 1000 is
0.073, 0.073. 437 by 1000 is equals to 0.437 और रीड कैसे करेंगे 0.437. 10 1 upon tens means 10 times 1 upon 10 होगा तो it makes 1. 100 1 upon hundreds, 100 times 1 upon 100 होंगे then it will make 1. 1000 times 1 upon thousands होंगे then it will make 1. Now next is to put decimal or point. We count the number of zeros in the denominator and we will put the decimal leaving same number of digits from the right in numerator. If the digits in numerator are less than the number of zeros in denominator, then we will put required number of zeros in between decimal and digit to make these numbers of digits equal to number of zeros in denominators. हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे डिनोमिनेटर में और उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर वाले नंबर में क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे फ्रॉम राइट साइड, उतना ही काउंट करके. अगर न्यूमरेटर का नंबर लेस है तो जीरो और डेसिमल जो हमारा होगा जीरो पुट करेंगे डेसिमल और उस न्यूमरेटर के नंबर के बीच में. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स. A mixed fraction such as 3:1 by 10 has two parts. An integral part that is 3 हमारा integral part है and fractional part that is 1 by 10. As a decimal number, such numbers have a decimal point separating the integral part and the fractional or decimal part. So, we write 3:1 by 10 is equals to 3.1. Similarly, 4:5 by 100 is equals to 4.05. 5:632 by 1000 is equals to 5.632. और इसमें हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट होता है. A mixed fraction can be written as an improper fraction which can be changed to decimal number. For example, 9:7 by 10. जैसे हम नॉर्मली मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7. 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला रिमाइंडर होता है उसको प्लस करेंगे. दैट इज 97 बाय 10 इज इक्वल्स टू 9.7. 48:13 बाय 100 इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 13 और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा 100. दैट इज 4813 अपॉन 100. अब यहाँ पे देखो 100 में 2 जीरोज हैं तो राइट साइड से हम 2 प्लेसेस के बाद 0 पुट कर देंगे. दैट इज 48.13. 7:49 बाय 1000 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 49 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 7049 अपॉन 1000. 3 जीरोज हैं तो राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे 7.049. Now next is decimal together. We can write decimal fractions together as 2 by 10 and 3 by 100 together is equals to 2 by 10 plus 3 by 100 is equals to. यहाँ पे हमने क्या किया 100 किया, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया 2 by 10 को 20 by 100 में कन्वर्ट किया. दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 10 करके. 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 10 को 10 से किया 100 और जैसे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं ऐड किया 20 प्लस 3 अपॉन 100 23 बाय 100. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया नीचे 2 जीरो तो राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद हमने क्या कर दिया डेसिमल पुट कर दिया. दैट इज 0.23 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.23. राइट. नेक्स्ट इज 4 by 10 5 by 100 and 7 by 1000 is equals to 4 by 10 plus 5 by 100 plus 7 by 1000 is equals to. अब हमने क्या किया सबसे जो लार्जेस्ट है दैट इज 1000 हम क्या करेंगे सबका डिनोमिनेटर बनाएंगे. तो 4 by 10 को 1000 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 by 1000. 5 by 100 को
1000 में कन्वर्ट किया, 100 को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से किया तो 50/1000 और 7/1000 एज इट इज है, ऐड किया, लाइक फ्रैक्शंस है, 1000 जो कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज, 400 प्लस 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 457/1000। नीचे 3 जीरोज है तो राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट किया, 0.457 और 0.457। Now next is place values in decimals. We know that the place value of a digit gets multiplied by 10 as we move left or divided by 10 as we move right. Similarly, for the digits on the right of the decimal. The first place on the right of the point decimal is the 10th place. 1 is divided by 10 is equals to 1/10, followed by the hundredths 1/100 and thousands 1/1000 place. For example, 4.7 is equals to 4 plus डेसिमल के बाद है तो 7/10. So 4 क्या है, वंस प्लेस पे है और डेसिमल के बाद किससे स्टार्ट होता है, 10th प्लेस से. 4 वंस प्लस 7 10ths. तो प्लेस वैल्यू क्या रही, 4 और वंस और 7 10th. तो 4 और 7/10, 4.7 की. नाउ प्लेस वैल्यू चार्ट. नंबर्स, टेंस, वंस, 10th, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. 10ths में 1/10, हंड्रेड्स में 1/100 और थाउजेंड्स में 1/1000. फर्स्ट इज 0.83. 0.83 में टेंस और वंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लिखा. नाउ डेसिमल के बाद 8 है, 8 कौन से प्लेस पे है, जस्ट डेसिमल के बाद तो 10th प्लेस पे, तो 8/10 इज इक्वल्स टू 0.8 और 3 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 3/100 दैट इज 0.03 और थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ नहीं है तो वहां पे 0/1000. नाउ नेक्स्ट इज 7.345. 7.345 तो 10th प्लेस पे कुछ नहीं है 0, वंस प्लेस पे 7 और 10th प्लेस पे 3 तो 3/10 इज इक्वल्स टू 0.3. हंड्रेड्स प्लेस पे 4, 4/100 इज इक्वल्स टू 0.04 और थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 5, 5/1000 इज इक्वल्स टू 0.005. ऐसे ही नेक्स्ट में 18.701. 10th प्लेस पे 1, वंस प्लेस पे 8, 10th प्लेस पे 7, 7/10 इज इक्वल्स टू 0.7. हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ नहीं है 0 है तो 0/100 इज इक्वल्स टू 0. थाउजेंड्स प्लेस पे 1 है, 1/1000 इज इक्वल्स टू 0.001. नेक्स्ट 4.09. 10th प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 4, 10th प्लेस पे 0 तो 0/10 इज इक्वल्स टू 0. हंड्रेड्स प्लेस पे 9, 9/100 इज इक्वल्स टू 0.09 और थाउजेंड्स प्लेस पे 0 तो 0/1000 इज इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स. वी नो 0.5 is equals to 5/10, 0.50 is equals to 5/10 plus 0/100 is equals to 5/10 plus 0 is equals to 5/10. 0.500 is equals to 5/10 plus 0/100 plus 0/1000 is equals to 5/10 plus 0 is equals to 5/10. So we can write 0.5 is equals to 0.50 is equals to 0.500. Similarly, 0.07 is equals to 0.070 is equals to 0.0700 is equals to 0.07. Zeros on either ends of the decimal fraction do not change the value of the decimal fraction. Zeros on the either ends. Either end means यहाँ पे जो zeros हैं ये fractional value को change नहीं करती. Example से करते हैं. Example 1. Write as a common fraction. A part is 0.237, B part 0.56, C part 3.080. Solution करते हैं. A part 0.237 is equals to 0.237. The number of digits in the decimal part is equals to 3. Decimal part में कितनी digits हैं यहाँ पे, कितने पार्ट है, 3 पार्ट है. सो द डिनोमिनेटर कितना रहेगा 1000. तो फ्रैक्शन क्या रहा 237 अपॉन 1000 दैट इज 237 अपॉन 1000.
तो डेसिमल के बाद जितने पार्ट हैं, जितने डेसिमल पार्ट्स हैं उतनी ही नीचे जीरोस लग जाएंगे। 3 पार्ट्स है तो 1000। नाउ बी पार्ट, द नंबर इज 0.56, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट इज 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट्स का मतलब 100। सो द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 100। तो फ्रैक्शन क्या रहा? 56/100। नाउ सी पार्ट, 3.080 इज इक्वल्स टू 3.08। एंड वाली जीरो की वैल्यू नहीं है तो उसको हम हटा सकते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट इज 2, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 100। तो फ्रैक्शन क्या रहेगा? द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 308/100। नाउ एग्जाम्पल 2, राइट 63.075 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 63.075, अब एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। 63 तो 60 मतलब टेंस प्लेस है तो 60 60 प्लस 3, और डेसिमल के बाद क्या होता है? 10th, 100s एंड 1000s। तो फर्स्ट क्या है हमारा? 10th, वहां पे क्या है? 0, तो 0/10। नेक्स्ट क्या है? 100th प्लेस पे 7, 7/100, और 1000 प्लेस पे क्या है? 5, तो 5/1000। और 63.075 इज इक्वल टू 60 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0.07 प्लस 0.005। इस तरह से भी हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख सकते हैं डेसिमल लगा के। नाउ एग्जाम्पल 3, राइट 9 प्लस 7/10 प्लस 0 प्लस 2/1000 इन द शॉर्ट फॉर्म। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 9 एज इट इज है, दैट मीन्स वो वंस प्लेस पे है। 9 प्लस 7/10 का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट, फर्स्ट डिजिट, तो 0.7। उसके बाद 0 का मतलब है 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 आएगा, और 1000 प्लेस पे क्या है? 2, तो 0.003। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? 9.703। 9.703। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। To compare decimal numbers, move left to right, comparing the digit at each place. If the digits at a place are equal, compare the digits at the next place on the right. For example, compare 4.7 and 5.2. सबसे पहले हम डेसिमल से पहले वाले पार्ट जो नॉर्मल हमारी डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो क्या है? 4 and 5, तो 4 इज लेस देन 5। जब हमारी 4 छोटा है 5 से तो हमें नेक्स्ट पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो 4.7 इज लेस देन 5.2। नाउ एग्जाम्पल 1, कंपेयर 36.45 एंड 36.48। अब यहाँ पे देखो डेसिमल से जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है? हमारा वंस और टेंस प्लेस पे जो है 36 है दोनों पे। तो 36 वंस और टेंस प्लेस पे क्या है? हमारा सेम है। तो हमें अब क्या जाना है? हम 10th और 100th प्लेस पे जाएंगे। 10th प्लेस पे दोनों पे क्या है? 4 है, तो वो भी सेम है। अब हम किस पे जाएंगे? 100th प्लेस पे जाएंगे। एक जगह 5 है, एक जगह 8 है, तो 8 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 100th प्लेस पे क्या है? 5 इज लेस देन 8, राइट। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन हो गया। That means 36.48 is greater than 36.45. So 36.45 is less than 36.48. Now example 2. Arrange 0.03, 0.5, 0.40, 0.008, 0.080 in ascending order. Solution करते हैं। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स आर। अब इसमें देखो इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस कितने हैं। जहां पे देखो फर्स्ट वाले में कितने हैं? 0.032, नेक्स्ट वाले में 1, नेक्स्ट वाले में 2, नेक्स्ट वाले में 3, नेक्स्ट वाले में 2। तो पहले हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स कौन कौन से वो फाइंड आउट करेंगे। राइट ऑल द नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो 0.03 इज इक्वल्स टू 0.030,
0.5 इज इक्वल्स टू 0.500, इक्वल बना लेंगे। सबसे ज्यादा क्या है 3 है ना, तो सबके पीछे 3 2 है तो हमने पीछे 0 लगा लिया। आपको भी पता है इनका कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ हम उसको क्या बना रहे हैं, इक्विवेलेंट बना रहे हैं। नंबर ऑफ आफ्टर डेसिमल पार्ट हम इक्वल कर रहे हैं। 0.402 है तो एक और 0 लगा दी। 0.008 इसमें ऑलरेडी 3 है तो इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारा डेसिमल के बाद यही 3 जो पार्ट्स थे वो सबसे हाईएस्ट था। तो नेक्स्ट क्या है 0.080, राइट। तो अब असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था, पहले सबसे छोटा। तो देखो सबसे छोटा क्या है हमारा, डेसिमल के बाद अगर डिजिट है दैट मीन्स वो बड़ी है, डेसिमल के बाद 000 है तो दैट मीन्स वो छोटी है। तो सबसे छोटा क्या रहा 0.008, उसके बाद 0.030, उसके बाद 0.080। क्यों, यहाँ पे 100th प्लेस पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 बड़ा हुआ तो इसलिए 3 पहले आया 8 बाद में आया। नाउ नेक्स्ट इज 0.40, 4 क्या है 10th प्लेस पे है तो 4 बड़ा हुआ। फिर 10th प्लेस पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा रहा। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या है 0.008, 0.03, 0.080, 0.40 और 0.5। नाउ एग्जाम्पल 4, अरेंज 2.109, 2.9, 0.29, 0.029, 0.2, 0.002 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देख रहे हैं 1000th प्लेस तक है तो सबके पीछे 1000th प्लेस तक लगा देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स करते हैं हम सबसे पहले। 2.109 ठीक रखा एज इट इज। 2.9 है तो उसके पीछे हमने 2 zeros लगा दी। नेक्स्ट है 0.029, उसमें ऑलरेडी 3 है, 1000th प्लेस तक गया हुआ है। नेक्स्ट है 0.2 है तो लास्ट में हमने 0 लगा दिया। नेक्स्ट हमारी 0.002 ऑलरेडी 1000th प्लेस तक है। अब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा जहाँ पे 0 लगा है तो सबसे छोटा हमारा क्या है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये 2 ये सारे बड़े हैं। अब यहाँ इनको कंपेयर करेंगे हम, इनमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे अब इसका, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ पे 2.109 है और ये 2.900 है, तो 2 के पॉइंट के बाद एक जगह 1 है एक जगह 9 है, तो 9 वाला बड़ा हुआ तो सबसे पहले 2.900, उसके बाद 2.109। अब ये दोनों हो गए। अब लास्ट वाले को कंपेयर करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 2 और 2 है, दोनों में 2 है, तो नेक्स्ट वाले प्लेस पे जाएंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमारा क्या है 0 है, तो 9 वाला बड़ा होगा तो 0.29, उसके बाद हमारा 0.20। अब ये हो गया हमारा, ये वाले भी दोनों हो गए 0.20 और ये भी हो गया। अब हमारा बचा 0.029 और 0.002, तो 0.029 बड़ा रहेगा क्योंकि उसमें 100th प्लेस पे है और लास्ट वाला क्या है 1000 प्लेस पे है 0.002, तो ये हमारा सबसे छोटा रहेगा। तो इस तरह से फिर हम इनको ओरिजिनल नंबर में लिख देंगे, दैट इज 2.9, 2.109, 0.29, 0.2, 0.029, 0.002। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is addition and subtraction of decimals. We add and subtract decimal fractions in the same way as in whole numbers. Remember, while carrying or borrowing 10 thousandths is equals to 1 hundredths. 10 hundredths is equals to 1 tenth. 10 tenth is equals to 1. Example 1. Find first is 2.35 plus 0.83 है, it's 0.83। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या है 2.35,
0.83। डेसिमल के बाद दोनों में ही 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, और हमने इक्विवेलेंट नहीं बनाया, वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, राइट। तो हमने यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले हम डेसिमल वाले पार्ट से बिल्कुल एक्सट्रीम, हम कहाँ से, एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 + 3 इज 8, 3 + 8 कितना हुआ 11, 11 का 1 यहाँ पे रखेंगे और 1 ऊपर डेसिमल के बाद वाले नंबर पे कैरी कर देंगे। 2 + 1 इज 3, 3.18। When we add or subtract, make sure that the decimal points are in line. line मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल। Now second part करते हैं इसका, that is 12.42 plus 0.304 plus 5 plus 210.4। अब देखो इसमें सारे इक्विवेलेंट नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो हम कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हमने 12.42, उसके बाद है 0.304, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10th के नीचे 10th, 100th के नीचे 100 और 1000 अलग, राइट। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, उनके प्लेसेस हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद है 5 पॉइंट कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं। फिर है 210, वो हमारा क्या है 1 टेंस और 100 प्लेस है। 0.4, तो ये 0.4 का मतलब है ये कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो इसको 10th पे ही रखेंगे। यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं इक्वल करने के लिए, यहाँ 0 0 0 0 और 0। अब हम नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, 4 + 3 7, 7 + 4 इज 11, 11 का 1 और यहाँ 1 कैरी किया। 1 + 2 इज 3, 3 + 5 इज 8, 1 + 1 is 2 and 2 as it is, 228.124. Now example 2. Find, first is 42.3 minus 23.8. सब्ट्रैक्शन भी सेम ही करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 42.3 minus 23.8, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे। 3 में से 8 माइनस हो जाएगा, नो नॉट पॉसिबल। तो हम सिमिलरली जैसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर से बोरो करते हैं, वैसे ही बोरो करेंगे। यहाँ 2 से बोरो किया, इट बिकम्स 1 एंड 3 बिकम्स 13। 13 - 8 इज 5। नाउ यहाँ पे क्या था 1 - 3 इज नॉट पॉसिबल, तो 4 से हमने बोरो किया, 4 बिकम्स 3 एंड 1 बिकम्स 11। 11 - 3 इज 8 एंड 3 - 2 इज 1 एंड आंसर इज 18.5। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 128.4 minus 78.345, तो डेसिमल के बाद सेम, डेसिमल के नीचे डेसिमल 128.400, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10th, 100th और 1000s, तो सेम प्लेस रखा 000 minus 78.345। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। 0 में से 5 माइनस हो जाएगा, नहीं नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे, दैट इज ऑल्सो 0, तो 0 फिर किसके पास जाएगा 4, 4 बिकम्स 3 एंड 0 बिकम्स 10। अब 10 से एक क्या करेंगे, बोरो देंगे नेक्स्ट 0 को, तो 10 बिकम्स 9 एंड 0 बिकम्स 10। 10 - 5 इज 5, 9 - 4 इज 5, 3 - 3 इज 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट किया। नाउ 8 - 8 इज 0, 2 - 7 इज नॉट पॉसिबल, तो 1 से क्या करेंगे हम, बोरो लेंगे, 1 बिकम्स 0 एंड 2 बिकम्स 12, 12 - 7 इज 5, तो इट इज 50.055। In subtraction, both the numbers should have equal digits after decimal. यहाँ हमने 0 0 लगा के equal digits की ना, right? Now next example 3. First add rupees 43.75 and rupees 27.50. सेम वही करेंगे जैसे डेसिमल है, रुपीज 43.75 प्लस रुपीज 27.50 ऐड करते हैं। 5 + 0 इज 5, 7 + 5 इज 12, 2 1 कैरी, 1 + 3 + 7 इज 11, 1 कैरी, 1 + 4 + 2 is 7, that is rupees 71.25. Now second is subtract rupees 32.75 from rupees 70.50. तो यहाँ पे rupees 70.50 minus rupees 32.75. Now 0 - 5 is not possible, तो we borrow 1 from 5, 5 becomes 4 and 0 becomes 10. 10 - 5 is 5. Now 4 - 7 is not possible, तो अगेन हम बोरो करेंगे, बट वहाँ पे क्या है 0, तो 7 से बोरो किया,
7 becomes 6, 0 becomes 10, 10 से अगेन हमने बोरो लिया, then 10 becomes 9 and 4 becomes 14. 14 minus 7 is 7, 9 minus decimal को as it is, 9 minus 2 is 7 and 6 minus 3 is 3. Now rupees 37.75. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next exercise भी आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is let's review. Decimal fractions have 10, 100, 1000 or any multiple of 10 as their denominator. In decimal number, the part before the decimal point is called the whole number part and the part after the decimal point is called the decimal part. Two decimal numbers are said to be equivalent decimals if they represent the same value. When we add or subtract, make sure that the decimal points are in line. In subtraction, both the numbers should have equal digits after decimal. Now next is maths fun. Draw 100 beads. Out of these 100 beads, color 45 in red, 25 in blue, 20 in yellow and the remaining beads in green. Write the decimal fraction that represent beads of different colors that you have drawn. Express the decimal fractions as decimal numbers. 100 beads में से 45 रेड हैं, तो रेड का क्या रहेगा 45/100, ये फ्रैक्शनल है और डेसिमल में 0.45. इसी तरह से 25 ब्लू है तो 25/100 0.25 और येलो का है 20/100 0.20 एंड द रिमेनिंग बीड्स इन ग्रीन. तो इनको माइनस करो, 45 + 25 + 20 प्लस करो और उसको 100 में से माइनस करके निकालो ग्रीन कितनी है और उनका भी डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करो. तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. Find the weights of different objects available in your house using an electric weighing machine. Record the weights in a table in your notebook. Then arrange the weights into ascending or descending order. तो ये एक्टिविटी भी आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is think, solve and learn. Write the correct decimal numbers using the given clues. The place value of 4 in 4 ones, place value of 2 in 2 thousands, place value of 6 is 6 hundredths, place value of 9 is 9 tenths, place value of 5 is 5 tenths and place value of 8 is 8 hundredths. तो फर्स्ट वाला क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 वंस, तो दैट मीन्स वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा 4. और नेक्स्ट क्या है हमारा 2 इज 2 थाउजेंड्स, 2000 का मतलब वंस, टेंस, 100 और 1000. तो 2 हमारा 1000 प्लेस पे रहेगा. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 हंड्रेड्स, तो डेसिमल के बाद 10ths, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 6 है 6 हंड्रेड्स, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 टेंस, 9 टेंस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 टेनथ, 5 टेनथ्स एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800, 800. तो ये हमारा क्या बना नंबर, राइट. तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.